Hello everyone. Dear children, I welcome you to the another very interesting session of biology uh, of the chapter 5, Cell, the basic fundamental unit of life. So, children, you have already studied about prokaryotic and eukaryotic cells. You have already studied about how the cell was discovered and the name of the various scientists. You also know about the cell theory, what are the postulates of the cell theory. You have already known the basic. You also know that inside a cell, like cell is the basic structural and functional unit of life, but inside the cell also there is a huge ministry and there is a huge system is working, and that system also has various division of labor is there. Cell also has different parts which work in different way, and together they constitute a single function, and that is life, right? So we call different parts of the cell as cell organelles. Look at this. You should know the spelling, so every cell has various cell organelles, and like the cell is surrounded by two membranes, double layer membranes, which makes it, separates it from the external environment, है ना. सेल की अपनी एक बाउंड्री वॉल होती है. आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, तो वो क्या करती है, वो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से दूसरी सेल से अलग रखती है. इसी तरह से जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है ना, उनकी भी अपनी अपनी डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि हर सेल ऑर्गेनल का अपना डिफरेंट काम होता है. थोड़ा सा ये नया है आपके लिए, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा. प्लीज़ पे अटेंशन, एंड दैट इज़ वाई इवन आई एम टीचिंग यू इन इंग्लिश, बिकॉज द कंसेप्ट शुड बी क्लियर टू यू. ऑल राइट. So every cell organelle has its own double layer membrane, which separates it from the other cell organelles, and every cell organelle can function perfectly within itself, right? So what important cell organelles we are going to study? I'm going to divide this lecture again into two parts. One will be done on one day and the other will be done on the other day, because there is a lot to learn here and you need a lot to remember. So I want you to please start preparing your notes also. All right, let's come back. So look at this, the chapters that we are going, the cell organelles that we are going to study here are endoplasmic reticulum, then Golgi apparatus, and lysosomes, mitochondria, plastids, vacuoles, etc. About plasma membrane and nucleus, I have already explained it to you in my previous lectures, right? So let us begin with the first cell organelle, that is endoplasmic reticulum, right? Endoplasmic reticulum, children, is a large network of membrane bound tubes. देखिए, सेल का अंदर में बहुत सारे सेल के पार्ट्स होते हैं जो कि काम कर रहे हैं, और इन सारे पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए भी तो अपने पास कोई सिस्टम होना चाहिए ना. Perfectly all right. We do have a system. I have taken different images here, but the image that is most convincing is this one. If you look at this, this is a nucleus, you can see on the left, and right hand side there is a folded tubules का structure है, membrane bound tubules हैं ये. इनको हम लोग बोलते हैं endoplasmic reticulum. Now endoplasmic reticulum are of two types, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum, RER and SER.
RER रफ क्यों है भाई? RER रफ इसलिए है, देखिए एक डायग्राम ये भी है, आई वांट टू फोकस ऑन दिस वन. Okay, so it's taking time, never mind. Yeah, look at this. Beautiful, है ना? So, rough endoplasmic reticulum है and smooth endoplasmic reticulum है. The difference is quite clearly visible. आपको dots दिख रहे हैं. So, ये जो rough endoplasmic reticulum है, ये rough क्यों है? ये rough इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर में राइबोसोम्स हैं. लुक एट दिस, है ना? इसके ऊपर में राइबोसोम्स हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. आई एम जूमिंग इट. ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर में राइबोसोम्स हैं. राइबोसोम्स का भी अलग वर्क होता है चिल्ड्रन. राइबोसोम्स का क्या होता है? दे आर दी साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. मीन्स ये वो जगह हैं जहाँ पर प्रोटीन बनता है. प्रोटीन किस चीज़ से बनता है? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट. प्रोटीन नाइट्रोजन से बनता है ना? तो जो हमारी बॉडी में नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है बॉडी, वहाँ वो इन राइबोसोम्स में दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन्स, राइट. और प्रोटीन्स बहुत तरीके के होते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको डिटेल बताऊंगी. और दूसरी है हमारी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. देखिए इसकी सरफेस एकदम स्मूथ है क्योंकि उस पर राइबोसोम्स नहीं हैं. सो दिस इज द स्मूथ एंड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, लेट्स कम बैक टू द चैप्टर अगेन एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो चिल्ड्रन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने देख लिया कि यहाँ पर रफ है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. अब इनका फंक्शन क्या है? लेट अस नो मोर अबाउट देम. व्हाट इज देयर फंक्शन? सो लेट मी ओपन द चैप्टर अगेन एंड द चैप्टर इज हियर. या आई लेफ्ट यू हियर. So this whole paragraph is very important. Now you have understood what is the meaning of the rough endoplasmic reticulum and what is the meaning of smooth endoplasmic reticulum. रट लीजिए इस चीज़ को, ठीक है. And there are ribosomes. Ribosomes are the site of protein synthesis. ठीक है. Now SER जो है smooth endoplasmic reticulum, right? इसका मेन फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं इनका दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. एक तो दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. और जो सेल मेम्ब्रेन है, भाई नई सेल बनेगी तो उसकी सेल मेम्ब्रेन बनेगी ना. या अगर हमारी सेल की मेम्ब्रेन जैसे स्कूल की बाउंड्री वॉल है, वो अगर कहीं पे ज़रा सी भी डैमेज होगी तो आप जाके वहाँ पे ब्रिक एंड सीमेंट लगा के उसको रिपेयर करोगे. यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रही है ना. सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की. तो ये लिपिड और प्रोटीन कौन सिंथेसाइज कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्रोटीन तो हमको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम से मिल जा रहा है. और SER जो है वो प्रोटीन एंड लिपिड्स को लेकर इट हेल्प्स इन सिंथेसाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन, राइट. दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. आप वर्ड्स की मीनिंग याद रखिए, आपको उनके फंक्शन अपने आप याद हो जाएंगे. मेम्ब्रेन की बायोजेनेसिस हो रही है. बायो मतलब नेचुरली, जेनेसिस हो रही है, सिंथेसिस हो रही है. सो दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. ठीक है, ये काम कौन कर रहा है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. प्लीज़ कीप ऑन अंडरलाइनिंग ऑल दीज थिंग्स इन टू योर बुक्स. दिस होल पैराग्राफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो आप क्या आंसर लिखेंगे? सिंथेसिस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन बाय द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम using the lipids and proteins is known as membrane biogenesis.
Some other proteins and lipids function as enzymes and hormones, right? See children, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल फंक्शंस होते हैं वो फंक्शंस हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स ही कैरी करते हैं. हार्मोन्स और एंजाइम्स दोनों का बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट इज लिपिड एंड प्रोटीन. तो हर जगह इनका हम लोग यूजेज करेंगे. ये एक जनरल सी बात है जो कि आपको याद रखनी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस, राइट? सो दिस इज व्हाट the smooth endoplasmic reticulum and the endoplasmic reticulum does. So one function of ER is to serve as channel for transport of material, especially proteins, between various regions. देखो सेल क्या है हमारी, बहुत बड़ी है. अगर हम इस सेल के डायग्राम को देखते हैं तो आप देखिए सेल में माइटोकॉन्ड्रिया भी है, क्लोरोप्लास्ट, ये तो एनिमल सेल है इसमें नहीं है, बट यूजुअली प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट होगा. फिर गोल्जी बॉडी है, न्यूक्लियस है, सेल के बगल में भी दूसरी सेल होंगी, उसके पास अगर किसी मटेरियल की कमी होगी तो वो यहाँ से दी जाएगी, है ना. तो सेल के अंदर पहले बात करते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह पे, सपोज हम माइटोकॉन्ड्रिया लेते हैं जहाँ पर हमारा रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन. उस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत होती है. इसका मतलब बहुत सारा प्रोटीन और लिपिड चाहिए. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया खुद तो नहीं बना पा रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ये चीज़ें पहुँचाएगा कौन? ये जो पूरी सेल के अंदर एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क है, ये किसका नेटवर्क है? ये नेटवर्क है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. ठीक है. तो वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज द चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, स्पेशली प्रोटीन बिटवीन वेरियस सेल ऑर्गेनल्स और विद इन द सेल एंड एज वेल एज द नेबरिंग सेल्स. ठीक है. द ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस. ये सरफेस भी प्रोवाइड कर रहा है फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल. ठीक है ना. मतलब एक एरिया प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है कि जी आप इसके ऊपर भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये सारे फंक्शंस आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए. what are the functions of various cell organelles. आपके सेल्फ नोट्स होंगे. ठीक है, उसको मैं देखती रहूँगी बीच बीच में. तो अनदर फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज टू डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? लिवर, है ना. लिवर प्लेज द क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग आवर बॉडी. तो जो लिवर की सेल्स होती हैं वर्टिब्रेट्स में, आगे हम लोग इस क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे डाइवर्सिटी, और उसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर दी वर्टिब्रेट्स. बट एक्चुअली द एनिमल्स विच हैव अ प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम, जिसको कि हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उनको हम लोग वर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो वर्टिब्रेट्स के लिवर में वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम which detoxifies many poisons and drugs, right? Now let us move to another very important cell organelle, children, and this is Golgi apparatus. देखो apparatus word itself बोल रहा है कि भाई ये एक अकेला नहीं है और बहुत सारे एक जैसे चीज़ों का ही कलेक्शन है. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है ना. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास में ही हम लोगों को गोल्जी अपैरेटस होता है. आपको करना क्या है, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक पाइप है, ठीक है, और उस पाइप को आपने ऊपर से प्रेस कर दिया है, चपटा कर दिया है. अब हम इसको क्या बोलेंगे? अब हम इसको बोलेंगे वेसिकल. तो जो गोल्जी अपैरेटस होती हैं, it was first of all discovered by Camillo Golgi. He was a Nobel laureate for the work he has done in the field of biology, and he used various stains
स्पेशली ही यूज्ड सिल्वर नाइट्रेट। देखिए यहाँ पर कैमिलो गोल्जी का भी हिस्ट्री दिया हुआ है, इसमें भी आप लोग थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा जो भी इम्पोर्टेंट वर्क which has been done by him, because 1 or 2 questions might come from here, like which stain was used by Camillo Golgi. So he used silver nitrate to stain the nerve cell. He basically worked on the nerve cells, right? And who discovered Golgi bodies or Golgi apparatus? Golgi apparatus को हम लोग Golgi bodies भी कहते हैं. Okay, so he discovered Golgi apparatus, and that was his work. And he also worked on the nerve cells, or to watch the thinnest of the cell organelle inside a cell. So he worked, and for that he was being recognized by winning the Nobel Prize, right? Let's come back to Golgi apparatus. ये भी स्टैक्स होते हैं. पहले हम लोग इसका पिक्चर देखेंगे, या पहले मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद मैं पिक्चर पे जाऊँगी. गोल्जी अपैरेटस भी बच्चों एक के ऊपर एक, ये वेसिकल्स है ना, पाइप को आप चपटे करके एक के ऊपर एक रखते जाइए. लुक एट दिस, ठीक है. गोल्जी अपैरेटस, इट इज़ फाउंड वेरी क्लोज टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना. ये वेसिकल्स होती हैं जो कि एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं, और इन जो वेसिकल्स एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती हैं, इनको हम लोग सिस्टर्न या सिस्टर्नी कहते हैं. ठीक है, बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं. यू पीपल रियली हैव टू राइट एंड लर्न, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, नाउ दीज मेम्ब्रेन्स they have connections with the endoplasmic reticulum. भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? टू ट्रांसपोर्ट hormones, enzymes या proteins and lipids to the various part of the cell. It's a network of tubules, और उनको हेल्प कौन करता है? गोल्जी बॉडीज. गोल्जी बॉडीज बेटा क्या काम करते हैं? दे कलेक्ट द रॉ मटेरियल फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे पैकेज इट, ठीक है. दे मॉडिफाई देम एंड पैकेज देम. जो भी एक्सेस होता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं. अदरवाइज दे हेल्प द ईआरस टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल. अब पैकेजिंग हो गई है तो भैया ट्रांसपोर्टेशन तो बहुत इजी हो गया, है ना. सो दे बेसिकली डू द पैकेजिंग, मॉडिफाई देम, पैकेज देम, एंड देन दे हेल्प इन ट्रांसपोर्टिंग देम, right? So this is the function they do. Apart from that, they also convert many simple sugars into complex sugars. भाई जो भी excess sugar आ गई है वो बॉडी में सिंपल शुगर के फॉर्म में तो नहीं रह पाएगी. It needs to be converted into complex sugar. और ये काम कौन कर रहा है? ये काम कर रहा है गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडीज़. साइंस में बेटा अब अपैरेटस भी सही नाम है, बॉडीज़ भी सही नाम है, तो आप लोग प्लीज़ कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा. इसीलिए वाइल टीचिंग आई कीप ऑन यूजिंग ऑल दी वर्ड्स, ठीक है. चलिए, एक काम गोल्जी अपैरेटस और करता है, दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स. ओ माय गॉड, लाइजोसोम्स बड़े ही खतरनाक होते हैं. एक तरफ तो बड़े हेल्पफुल होते हैं, दूसरी तरफ ये बड़े खतरनाक होते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक यू टू सी द इमेज, क्लोजर व्यू ऑफ, wait a second, a closer view of the, yeah, I have got all the diagrams, images for you. Look at this, beautiful. आपको ये पिक्चर्स मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जब आप सेल का डायग्राम बनाते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है ना. तो कम से कम when you have these images in your mind, when you practice them, it is easier for you. Look at the cisternae, मैं पास में दिखा रही हूँ. यहाँ पे न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है. और उससे आपको मतलब नहीं, ये जो सिस्टर्नी हैं एक के ऊपर एक वेसिकल्स हैं, ये स्टैकिंग है, और देन दैट इज़ हाउ द Golgi apparatus or Golgi bodies is formed.
All right. Now next we have is lysosomes. भाई लाइजोसोम्स का भी क्या काम होता है, उसके पहले ज़रा आपको मैं एक एनिमल सेल की पिक्चर दिखा दूं। और जब हम इसको बहुत पास से देखेंगे तो देखिए आपको मैंने क्या बताया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये आपकी है रफ, उसमें आपको डॉट्स दिख रहे हैं। उसके अलावा हम लोगों ने गोल्जी बॉडीज़ पढ़ी हैं आज, और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स का बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, और लेट मी ओपन द चैप्टर नाउ। ओके, या द चैप्टर इज हियर। लाइजोसोम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। एक्चुअली दे वर्क एज स्कैवेंजर्स, है ना। आपको भी पता है कि अगर सेल के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ डैमेज भी हो रहा होगा, कुछ टूट फूट भी हो रहा होगा, कुछ गंदगी भी फैल रही होगी, डेड एंड डिकेइंग सेल ऑर्गेनल्स, ओल्ड वंस बर्न आउट। तो सेल के अंदर क्लेंजिंग भी तो होनी है। तो इस जो लाइजोसोम्स होते हैं इनके पास में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो जो भी डेड एंड डिकेइंग सेल ऑर्गेनल है, ओल्ड सेल ऑर्गेनल है, या सेल के अंदर में कोई फॉरेन एलिमेंट आ गया है, फॉरेन मटेरियल आ गया है, तो लाइजोसोम्स जो हैं जाते हैं और उनके ऊपर में अपना डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं और वो ब्रेक हो जाता है एंड इट इज़ डाइजेस्टेड, ठीक है। इसके अलावा why lysosomes are known as the suicidal bodies of the cell? This cell organelle, imagine एक सेल ऑर्गेनल ऐसा भी है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि दिस इज़ अ सुसाइडल बैग। इमेजिन, सो दिस वर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन अ सेल, इमेजिन। बट ज़रूरी होता है ये काम सेल के लिए, बाहर तो नहीं ज़रूरी होता है। कावर्ड्स ओनली डू दैट। सो लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ प्रेशियस एंड वी शुड लिव इट टू द फुलेस्ट। एंड चिल्ड्रन, लाइफ में एक मैं आपको मंत्रा दे रही हूँ, लाइफ में कभी भी आपको दिक्कत आए, if one problem comes, there are 100 doors which are ready to be open. आपका सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करता है इन डोर्स को ओपन करने के लिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, एक काम नहीं हो रहा, नेवर माइंड, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच कैन बी डन, है ना, बिकॉज लाइफ इज़ अ प्रेशियस थिंग एंड इट शुड बी एन्जॉयड, है ना। So you should always live life completely, fully, king size, ठीक है, intelligently, logically, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग किसी दिन डिटेल में करेंगे। चलिए, सो लाइजोसोम्स में क्या होता है, सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भी वेसिकल्स ही हैं और इनके अंदर में बहुत पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है। होता क्या है, ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हो सकता है सेल बीमार पड़ गई, हो सकता है सेल डैमेज हो गई, या हो सकता है कि सेल काफ़ी ओल्ड हो गई है। ऑफ कोर्स ओल्ड सेल ऑल्सो डाइज, है ना, एंड दैट इज़ हाउ द न्यू सेल कम्स। तो आपने सेल थ्योरी पढ़ी भी है कि एवरी न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम द ओल्ड सेल, राइट। तो व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, लाइजोसोम्स, देखिए ये हो रहा है, व्हेन सेल गेट्स डैमेज लाइजोसोम्स में बर्स्ट एंड देयर एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल, है ना। वो इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, and that is why lysosomes are also known as the suicide bags of the cell, ठीक है।
Lysosomes are also membrane bound sacs filled with digestive enzymes, and these enzymes are definitely made by RER. क्यों? क्योंकि RER has ribosomes, ribosomes are making protein, और जितने भी enzymes होते हैं उनका basic component क्या है? क्या है? प्रोटीन. ठीक है ना. तो जहाँ पे एंजाइम है मतलब वो प्रोटीन से बना है. प्रोटीन कहाँ पे बना है? राइबोसोम पे. राइबोसोम कहाँ है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे है. अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल चिल्ड्रन, and in my next lecture I'll be taking up the rest of the cell organelles. All right. Thank you very much. Keep learning.